Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and you all are revising your concept on daily basis. Okay, students. So today we start our day with the very first subject, English. So this is your English book. You have to open your book. Yes, you also have to bring out your English notebook as well as pencil and eraser in your hands. Okay, because today we have to write the question answers. Fine. So open your book. Come on page number 4 to 42. So students, this is your page number 42. And as I told you that one day we will read the comprehension and the next day we have to answer the following questions given below. Right? I used to ask some new questions as well. ठीक है मैम आपसे कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड कोई भी न्यू क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं ठीक है बट टुडे ओनली we used to give answers of these questions. Okay, so one by one I'll keep on asking you questions. Okay, some are related to these questions and some are related to the comprehension. Okay, so let's start. And one more thing, when we used to read these comprehensions, so you have to keep on underlining the important things from the passage, right? तो आपको रीडिंग करते वक्त जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है या कुछ भी आप न्यू लर्न करते हो सो यू जस्ट हैव टू अंडरलाइन इट. आपको कोई न्यू वर्ड जो आप लर्न करते हो न्यू वोकैब लर्न करते हो यू हैव टू अंडरलाइन इट एज वेल एज यू ऑल नो व्हाट आर द नेमिंग वर्ड्स है ना. यू ऑल नो नाउन क्या होते हैं. किसी भी प्लेस किसी भी पर्सन थिंग ऑब्जेक्ट के नेम को हम क्या बोलते हैं नाउन बोलते हैं. वी ऑल्सो कॉल नाउन एज नेमिंग वर्ड्स है ना. तो आपको क्या करना है कॉम्प्रिहेंशन रीड करते टाइम यू हैव टू अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स. ओके, तो आप नेमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करोगे. इफ इट इज अ प्लेस the name of the word is belong to a place so you have to underline it. Okay, if it is a person name again you have to underline it. If it is an object so you have to underline it. Okay, so basically आपको read करते time whenever you read something new you have to underline it. Whenever you find that this is a noun you have to underline it. Okay, this task we will do in our assessment as well. आपको जो वीकली बेसिस पर हर सैटरडे को असेसमेंट मिलती है आपने जो आपकी इंग्लिश की नोटबुक है वहां पर आपको एक पेज पर इफ आई एम गिविंग यू अ कॉम्प्रिहेंशन तो आपने क्या करना है वहां पर अपने नेमिंग वर्ड्स की लिस्ट बनानी है. फर्स्टली रीड द कॉम्प्रिहेंशन वेयर एवर यू फाइंड एनी नेमिंग वर्ड एनी नाउन अंडरलाइन इट एंड राइट इट इन योर नोटबुक. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. So today what we have to do, we have to solve these question answers, right? So let's see. Okay, now you have to open your English notebook students जहाँ पर आप write करते हो question answers. One by one I'll ask question to you and you have to give me the answer. So first of all आपने क्या करना है, you have to mention the date on top. ठीक है, today is 18th of February, the year is 2021. So सबसे top पर जहाँ पर date column mention होता है, अगर date column mention नहीं है तो आपने date लिख के आगे date mention करनी है. ठीक है, then in middle of the page आपको यूनिट नेम जरूर मेंशन करना है. इट बिलोंग्स टू यूनिट सी. तो टॉप पर ही बट मिडल इन मिडल यू हैव टू राइट यूनिट सी. ओके, now start with the very first question. What do ducks like to do? Ducks को क्या करना पसंद है. If I am asking you what do you like to do, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे ये करना पसंद है. आई लाइक टू ईट केक, आई लाइक टू डू डांस, आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू सॉल्व पजल्स. है ना, हमें डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स करनी पसंद है, राइट. किसी को खाना पसंद है, किसी को प्ले करना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को सिंग करना पसंद है, राइट. सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट लाइकिंग. So, what is the question over here? What do ducks like to do? Ducks को क्या करना पसंद है? Okay, tell me. अभी आपने comprehension read किया है and you, I know कि आप सबको आंसर पता है. So, what do ducks like to do?
Ma'am, swim. Very good. Where they used to swim? Ma'am, in the pond. Very good. So आपको answer भी full sentence में देना है, right? So now you have to take your pencils with you. First of all, आपने क्या करना है? You have to write the answer number. Answer, answer A and S. Answer number one. Okay. So like mention जरूर करना है. So how you have to write the answer? The T capital the ducks, ducks ducks, the ducks like. Okay, so your answer should be from question, है ना? आपका जो आंसर होगा वो क्वेश्चन में से ही होगा. What do ducks like to do? So the ducks like to do. ठीक है, सारा आपका क्वेश्चन सही है. The ducks like to do, like to swim, like to swim, swim, swim. Where they swim? Ducks like to swim in the pond, है ना? आपको आंसर पता है कि उनको स्विम करना पसंद है, बट हियर आल्सो यू हैव टू मेंशन कहाँ पर स्विम करना पसंद है. In the pond. Okay, so your answer is completed. The ducks like to swim in the pond, है ना? अगर आप यहाँ तक आंसर लिखते, the ducks like to swim, ducks को swim करना पसंद है, that is not a complete answer. So duck को कहाँ swim करना पसंद है? The ducks like to swim in the pond, right? Chalo, come to the next question. So your next question is, what do hens gives us? Hens हमें क्या देती है? जैसे cow gives us milk. So what do hens gives us? So here you have to firstly write answer A N S, answer number two. So now you have to start. The hen give us eggs. hen क्या देती है हमें? Eggs. तो यहाँ पर आप लिखोगे hen, the hens give us eggs. क्या देती है hen हमें? Eggs. EGGS, eggs. The hen gives us eggs, right? Okay, come to the next question, students. So what does ox do for us? Ox हमारे लिए क्या करता है? What does ox do for us? Pulls our cart, है ना? Cart को pull करता है. बुलक कार्ट आपने देखे हैं विलेजेस में, और इवन इन अर्बन एरियाज आल्सो आपने देखा होगा. बुल्स के पीछे कार्ट होता है, उसके अंदर हम हैवी लोड करके ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं ना. सो व्हाट डज ऑक्स डू फॉर अस? ओके, यहाँ पे आप राइट डाउन करोगे अपना आंसर. द ऑक्स, the सबसे पहले you have to mention the answer number 3. Okay, so ox, the ox pulls, PULLS, pulls cart, for us, हमारे लिए कार्ट पुल करते हैं ना. ऑक्स को तो नहीं चाहिए दैट दे हैव टू अर्न मनी, है ना. ऑक्स किसके लिए करते हैं? व्हाई दे पुल्स कार्ट? फॉर अस. द ऑक्स पुल्स कार्ट फॉर अस. ठीक है, ऑक्स हमारे लिए क्या करता है? व्हाट डज ऑक्स डू फॉर अस? द ऑक्स पुल्स कार्ट फॉर अस, हमारे लिए कार्ट पुल करते हैं. ओके. Okay, if I'll ask question to you, what does buffaloes do? No, okay, what does buffalo says? Okay, here this is an extra question, right? I'll write the question. ठीक है, ये आपका एक एडिशनल क्वेश्चन है. ठीक है, ये जनरली मैम आपसे पूछ रहे हैं फ्रॉम द कॉम्प्रीहेंशन. इफ यू वांट टू राइट दैट क्वेश्चन तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप इट. आप सिर्फ ओरली मैम को इसका आंसर दे सकते हो. ठीक है. So the question is, what buffaloes says? What
buffaloes say says. So what is your answer? Tell me. What is your answer? Hurry up. What buffalo says? What does buffalo says? Okay, यहाँ पे does आएगा. Wait for a while. I'll have to erase it. So what? Wait. What does BOES? What does buffaloes says? What does buffaloes says? SAYS says, right? So what does buffalo says? Who will give me the answer? Ma'am, moo, moo. Very good. So buffaloes says moo, moo, right? So this is your answer. So if you want to write it, so you can write it over here. Otherwise, you just have to skip it. Okay? अगर आपको राइट डाउन करना है तो आप राइट डाउन भी कर सकते हो नोटबुक में. नहीं करना है so it's okay. Answer number 4. The buffaloes, the buffaloes say moo am double o x moo moo, right? Okay. What do buffaloes give us? Okay. This is the oral question. What do buffaloes gives us? Ma'am, milk. Very good. Give your answer in full sentence. The buffalo gives us milk. Okay. What do buffaloes gives us? The buffaloes gives us milk. Okay. So this is your today concept, right? ये आज आपका इंग्लिश का वर्क है. You have to cover this worksheet, the whole worksheet. You have to cover it, and then you have to share the pictures with me. Right? आपने अपना होमवर्क मैम को शेयर करना है. Right now we will come back towards your next subject, which is art and craft. So today we do art and craft in your art and craft book. This is your child centric art and craft creative activities and more. Right? So you just have to bring your art and craft book. Okay, students, so you have to open your art and craft book. Okay, come on page number 1 to 12. So today we have to do something new, right? So this is your page number 12. If you want to cross check it, you have to see over here. The number is mentioned, it's 1 to 12, right? So today we're gonna do this page, right? So on top, first of all, you have to mention the date first, right? So what is the date today? I told you now, today is hurry up, 18th of February, right? So here you have to mention 1/8, 18, the month is February 02 and the year is 2021, right? Now, what is the day today? Today is Thursday, so you have to circle the abbreviation. Go outside, check the weather today, and circle the clipper. Right? Okay, so students, today we do the wax painting. What is the caption over here? Today we do wax painting. है ना? You all know wax क्या होती है? You have you ever watched a candle? Candle देखा है आपने? So वो क्या होता है? Wax से बनता है, right? So today we do wax painting. क्या करेंगे आज हम? Wax painting, right? This is a new task for you all. Okay, as you see this picture, देखो इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है ना? You see a cat, है ना? Just like similar to it, you also have to draw something, any of the particular object. You all know how you have to draw, है ना? हमने कितनी drawing करी है.
we draw a tree, cat, dog, है ना? Many more things. So here you have to draw anything. Okay, let's see what material we require for that. Okay, so material required is today you have to collect all these material, right? Watercolor, आपको आज watercolor collect करना है. You must have a cotton ball and फॉर टुडे टास्क आज जो आपने टास्क करना है उसके लिए आपको एक वाइट कैंडल चाहिए. ठीक है, व्हाट यू वांट अ वाइट कैंडल. ठीक है, तो आज जो हम वर्कशीट में करेंगे उसके लिए सिर्फ आपको वाइट कैंडल रिक्वायर्ड है एंड फॉर टुमारो यू मस्ट हैव अ वाटर कलर एंड कॉटन बॉल. ठीक है, so these two items are for tomorrow and for today you must have a white candle. Okay, so let's see what we have to do for today. Okay, so instruction, we have to follow the two steps. The first step we do today and the next step we will do tomorrow, right? So instructions are draw a picture using the tip of a white candle. तो आपके पास white candle होगी है ना? Okay, wait for a while. I'll ओके स्टूडेंट्स, आई शो यू. देखो आपके पास क्या होनी चाहिए, एक वाइट कैंडल होनी चाहिए और आपको उस वाइट कैंडल के थ्रू आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है बाय यूजिंग द टिप ऑफ अ वाइट कैंडल. आई शो यू आपने कैसे करना है. ठीक है मैम, आपको सबसे पहले आई विल शो यू द वाइट कैंडल. सी, दिस इज अ वाइट कैंडल. आपके पास वाइट कैंडल होनी चाहिए. ठीक है, ये देखो, सी दिस इज द टिप ऑफ द वाइट कैंडल. ठीक है, आपको ये एक पेंसिल की शेप में है. ठीक है, तो आपने इस टिप को यूज करना है टू ड्रॉ अ पिक्चर. आप हट की पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो. यू कैन ड्रॉ एनी पिक्चर यूजिंग दिस टिप. ठीक है, तो आपको व्हाइट कैंडल की टिप को एज अ पेंसिल यूज करना है टू ड्रॉ समथिंग. ठीक है, सो नाउ कम बैक. यू हैव टू यूज दैट वाइट कैंडल टिप. ठीक है, आपने कैंडल की टिप यूज करी जस्ट लाइक पेंसिल. जैसे आप पेंसिल यूज करते हो वैसे ही आपने टिप यूज करनी है यहाँ पर. ठीक है, ये जो आपको ब्लैंक स्पेस प्रोवाइडेड है. सपोज यू ऑल ड्रॉ अ ट्री. ठीक है, कोई ट्री ड्रॉ कर रहे हैं. सम ऑफ यू वांट टू ड्रॉ बटरफ्लाई, सम ऑफ यू वांट टू ड्रॉ अ काइट. ठीक है, तो इट्स एज पर योर चॉइस. आपको क्या अच्छे से ड्रॉ करना आता है आप वो ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, सो आई एम मेकिंग अ हट, राइट? सो आई ड्रॉ अ हट ओवर हेयर विद माई कैंडल टिप. ठीक है, तो आप ये देखो, सी ये तो पिंक कलर है बट आपकी जो कैंडल है वो वाइट कलर की है. तो आप जब ड्रॉ करोगे तो इसमें वाइट लाइन आएगी. ठीक है, तो सो हेयर आई ड्रॉ अ हट, राइट? तो आपने एक हट ड्रॉ करनी है बाय यूजिंग द कैंडल टिप जस्ट लाइक दिस. ओके, एंड इट्स एज पर योर चॉइस. आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो. इफ यू वांट टू ड्रॉ बटरफ्लाई सो यू कैन ड्रॉ बटरफ्लाई. इफ यू वांट टू ड्रॉ अ काइट तो आप काइट भी ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, एज पर योर विश. ओके, so students, my hut is ready now. So for today, what you have to do, you have to only draw a picture using candle tip. Okay, so it's ready now. So my picture is ready. So आज के लिए आपको सिर्फ यही टास्क करना है. यूज द कैंडल टिप एंड ड्रॉ अ पिक्चर. ओके, एंड tomorrow we will complete this worksheet. So for tomorrow what you will require, you must have watercolor, you must have a cotton ball. ठीक है, आपके पास कॉटन होनी चाहिए और यू मस्ट हैव वाटर कलर. ओके, एंड प्लीज पिक अ ट्रे. एक आप ट्रे या कोई भी यूटेंसिल कटोरी होती है वो भी आप पिक कर सकते हो ताकि आप उसको मिक्स कर सको अच्छे से वाटर कलर को. ठीक है, और फिर कॉटन बॉल उस वाटर कलर में डिप कर सको. सो यू मस्ट हैव अ बाउल और ट्रे, एनीथिंग वट एवर इज कंफर्टेबल विद यू, तो वो आप पिक कर सकते हो. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, only this task, only you have to do the drawing, right, for today, and tomorrow we will complete this worksheet. Okay,
So that's it. I'm giving you some time to complete this task. Then we will shift towards our next subject. Okay, students, now we have come towards our next subject, which is Hindi, right? This is your Hindi book, Child Centric Hindi Perfection Toolkit 2 of 2, right? So you have to open this. Come on page number 3 to 32. As I told you earlier, ठीक है, सबसे पहले if we're going to start any new worksheet, तो आपका जो previous worksheet है हिंदी की, we will revise it and then we will come towards our next worksheet, right? So again, you have to open it, turn your page around, come on this page, we will read these sentences, short sentences हम read करेंगे ताकि हमारी ये जो vocab है, हिंदी के जो शब्द हैं, ये आपके दोबारा से रिवाइज हो जाए, okay? So now you have to come on this page. This is your page number 3131 from your book. सबसे पहले हम ये रिवाइज करेंगे अपना previous concept and then we will come towards our next पेज, ओके? तो आप सबसे पहले यहाँ पर पुट योर पेंसिल और फिंगर, ठीक है, वो आप यहाँ पे रखोगे, रीड दिस, ठीक है, लाउडली आपने रीड करना है, री श भ ऋषभ, क्या लिखा है ये, री श भ ऋषभ, आ ऋषभ, आ, wait for some time. Next, यज्ञ, 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 कर, कर, यज्ञ कर, और, चरण, चरण, पढ़, पढ़, यज्ञ कर और चरण पढ़, यज्ञ कर और चरण पढ़, पूर्ण विराम. नेक्स्ट सेंटेंस, ऋषभ, ऋषभ आ, ऋषभ आ, ऋषभ, ओम, ओम, भज, भज, ऋषभ ओम भज, पूर्ण विराम, ऋषभ, ऋषभ, यज्ञ, यज्ञ कर, कर, ऋषभ यज्ञ कर, ऋषभ यज्ञ कर, पूर्ण विराम, ऋषभ, ऋषभ, चरण, चरण, ऋषभ चरण, पढ़, पढ़, ऋषभ चरण पढ़. ओके, नाउ आपने रिवाइज कर लिए, आपकी जितनी भी वोकैब थी, यू विल रिवाइज द होल वोकैब थ्रू दिस सेंटेंस रीडिंग. ठीक है, जब आप वाक्य, सेंटेंस को क्या बोलते हैं, वाक्य, जब आप वाक्य रीड करते हो तो उसमें जितनी भी आपने प्रीवियस अपनी वोकैब, जितने भी शब्द नए आपने रीड करे थे, वो सारे इस वाक्य के थ्रू आपने रिवाइज कर लिए. ठीक है, सो दैट्स व्हाई whenever I introduced you a new worksheet, जब भी मैम आपको एक न्यू वर्कशीट इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आई वांट कि आप पहले जो आपके वाक्य आपने रीड करे हैं वो आप दोबारा से रिवाइज करो, एक बार रीड करो, ताकि आपके टू पर्पस सॉल्व हो जाए. पहले तो आपके शब्द भी रिवाइज हो जाए और आपको जोड़ जोड़ कर रीड करना है. ठीक है, शब्द को जोड़ जोड़ कर आपको रीड करना है और उससे आपकी रीडिंग इम्प्रूव हो. ठीक है, चलो, नाउ सी, एज आई फाइंड दिस वर्कशीट इज क्वाइट डिफिकल्ट, है ना, थोड़ी ज्यादा इसमें आपको शब्द हैं, तो हम इस वर्कशीट को क्या करते हैं, वी विल डिवाइड दिस वर्कशीट. ठीक है, इसको टू हाफ्स में हम डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट हाफ वी विल डू टुडे, और ये जो वाक्य है ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. ठीक है, क्योंकि इसमें आपके बहुत ज्यादा वोकैब दी गई है, शब्द बहुत ज्यादा है, तो आज हम शब्द पर कंसंट्रेट करेंगे, शब्द को रीड करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ये आपके वाक्य रीड करेंगे. ठीक है, चलो, लेट्स स्टार्ट. और दिस इज अ न्यू वर्कशीट, सो ऑन टॉप व्हाट यू हैव टू राइट, you have to fill this column. Okay, date, today is 18th of February, तो यहाँ पे आप पहले डेट मेंशन करोगे आज की. ठीक है, also you have to circle the abbreviation, ये जो थर्सडे है, टुडे इज थर्सडे, सो यू हैव टू सर्कल इट. और ये जो आपका टास्क होता है टू चेक द वेदर, ये आप खुद करते हो. हाउ, यू हैव टू गो आउटसाइड, है ना, चेक करोगे वेदर, आज वेदर कैसा है, सनी है,
रेनी है, क्लाउडी है, विंडी है या कोल्ड वेदर है, ठीक है। तो उसको ऑब्जर्व करके यू जस्ट हैव टू सर्कल इट। फाइन। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने वर्ण को उच्चारण करेंगे, ठीक है। वर्ण ये जो आपको दिए गए हैं वर्ण, इसको आप रिकॉग्नाइज करोगे, लाउडली इसका उच्चारण करोगे, ठीक है। 9 लेटर्स कवर्ड हो रहे हैं इस पेज के थ्रू, इस वर्कशीट के थ्रू, राइट। सो बड़ी ई से ईक, क्या है ये, बड़ी ई से ईक। नेक्स्ट देखिए, और साथ में आपको ऊपर क्लिप आर्ट भी मेंशन है ना, देखो क्लिप आर्ट भी दी हुई है आपको छोटी छोटी, ताकि आपको रीडिंग में उच्चारण करते हुए आपको हिंट भी मिल जाए और आपको इजी भी लगे, ठीक है। ये क्या है, द से दरवाजा, क्या है ये, द से दरवाजा। नेक्स्ट, वो से वन, वो से वन। नेक्स्ट देखो, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। ग से गमला, ग से गमला। ड से डलिया, ड से डलिया। नेक्स्ट, छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली। ध से धनुष, ध से धनुष। द द सॉरी, दिस वन इज थ से थर्मस, क्या है ये, थ से थर्मस। ओके, तो आपने ये सारे जितने भी लेटर्स हैं इसका उच्चारण कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जितने भी 9 लेटर्स हैं इनको जोड़ जोड़ कर न्यू न्यू शब्द बनाएंगे। क्या करेंगे, शब्द बनाएंगे, ठीक है। कुछ आपको वो कैब यहाँ पर दी गई है और कुछ वो कैब आपको यहाँ दी गई है, ठीक है। और ये जो नीचे दी हुई है ये आपकी प्रीवियस वाली है बट विदाउट क्लिप आर्ट्स है, ठीक है। ताकि आप जब सेकेंड टाइम रीडिंग करो तो आपको कोई हिंट ना मिले, आपको क्लिप आर्ट की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले कम ऑन टॉप, लेट्स रीड दो शब्द। तो सबसे पहले कौन क्या वर्ड है, क्या शब्द दिया गया है यहाँ पे, ईद, 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 ईद। र पर, क्या है ये, पर। वो तन वतन, वो तन वतन। आ अंगद, अंगद, ये क्या है, के ऊपर बिंदु क्या बन जाएगा, ये अंग। कैसी साउंड आएगी, अंग, अंगद, अंगद। डगर, 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 डगर। चल, 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 चल। इधर, 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 इधर। थम, थम, ठीक है। आज हमने बहुत सारी वो कैप करी है ना, थम, थम। नेक्स्ट देखिए, गज, 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 गज किसको बोलते हैं, गज हम हाथी को भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वर, वर, वर। इत्र, इत्र, क्या लिखा है ये, इत्र, इत्र। ईश, 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 ईश। दर, दर, क्या लिखा है ये, दर, दर। नेक्स्ट देखिए, गई, 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 गई। अंग, 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 अंग। ईस, 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 ईस। नेक्स्ट, धन, 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 धन। दल, 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 दल। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग आई वांट टू से, जब आप रीडिंग करते हो ना तो आपके हैंड में अगर पेंसिल है या आप विद फिंगर्स रीड कर रहे हो तो आपको अपने फिंगर्स को भी वैसे मूव करना है, ठीक है। जो भी, जैसे सपोज यहाँ पर आप रीड करो द ल द, ठीक है। पेंसिल है तो पेंसिल यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। और फिंगर के थ्रू अगर आप रीड करो तो फिंगर यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। और मूव योर फिंगर कॉन्टिन्यूसली
while reading the particular word. ठीक है, अगर आप ये वर्ड रीड करते हो तो आपकी फिंगर भी फिर यहाँ होनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो द स, उससे आपकी कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होती है, बिकॉज आप एक ही वर्ड पे कंसंट्रेट कर रहे हो एक टाइम पर, ठीक है। द स दस, द स दस, क्या लिखा है, द स दस। नेक्स्ट देखो, त, अंत, त, अंत। नेक्स्ट, ड, र, डर, क्या लिखा है ये, ड, र, डर, क्या लिखा है, ड, र, डर। नेक्स्ट, द, म, दम, द, म, दम, अंक, 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 ई, ख, ईक, ई, ख, ईक, थ, ल, थल, थ, ल, थल, थ, ल, थल। नेक्स्ट, वो, न, वन, क्या लिखा है ये, वो, न, वन, क्या लिखा है, वो, न, वन। ठीक है। अब आपने आज क्या करना है, सबसे पहले आप शब्दों का उच्चारण करोगे, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फिर इन शब्दों की हेल्प से आप ये सारे शब्द, सॉरी, इन वर्णों की हेल्प से आप ये सारे शब्द रीड करोगे, ठीक है। और नीचे वाले शब्द भी रीड करोगे, और इन द इवनिंग यू हैव टू रिवाइज ऑल दीज vocab विदाउट एनी हेल्प, ठीक है। यहाँ पर आपके पास नोटबुक है तो आप नोटबुक रख सकते हो, बट विदाउट यूजिंग दिस क्लिप आर्ट, बिना इस क्लिप आर्ट को देखे आप रीड करोगे इन शब्द को, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, और in our next video we will read those sentences, okay। So now it's time to write your daily diary, ठीक है। सो सबसे पहले आप अपनी डेली डायरी नोटबुक लेके आओ, and then we will write our daily diary, okay। So firstly we have to mention today date, so today is 18th of February and the year is 2021, okay। Now what we will covered in our English, so you have to complete page number, complete page number 4 to 42 of unit C, ओके। तो आपने क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 42, किस यूनिट का, यूनिट सी का, ठीक है। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन आवर क्रिएटिव, क्रिएटिव में क्या करेंगे हम, बताओ। You have to draw a picture of anything, whichever is your favorite, whatever is easy for you, वो आप draw करोगे, आओ, with pencil, no, with the candle tip, ठीक है। तो you have to do page number, पेज नंबर 12, ओके। तो आपको पेज नंबर 12 करना है क्रिएटिव में, एंड द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज हिंदी। सो इन हिंदी व्हाट यू हैव टू डू, you have to do page number 3 to 32 and share the voice recording with me, ठीक है। do page do page number 3 to 32 of unit, let's see the unit of unit, wait, unit, एक बार you have to check the unit as well, है ना, गलत लिखने से अच्छा है, we will check the unit, so it's unit B, right। so आपको पेज नंबर 32 कवर करना of unit B, okay। and then share the voice recording, again I am saying, जब आप रीडिंग वर्क करते हो, ठीक है, ओरल वर्क जब आपका होता है तो उसके लिए आपको वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड करनी है, व्हेन यू डू द रिटन वर्क सो उसके लिए आपको पिक्चर्स शेयर करनी है, ठीक है। So I'm not writing over here in your daily diary this again and again. I don't find it
करेक्ट कि मैम अगेन एंड अगेन आपको मेंशन करे और यहाँ पे राइट डाउन करें दैट यू हैव टू शेयर द वॉइस रिकॉर्डिंग। ठीक है, इट्स वेरी कॉमन कि अगर आप ओरल वर्क कर रहे हो सो यू हैव टू शेयर द वॉइस रिकॉर्डिंग। इफ यू आर डूइंग द रिटन वर्क सो यू हैव टू कैप्चर अ पिक्चर एंड शेयर द पिक्चर विद मी, राइट? So that's it for today, and God bless you all. I love you. Have a good day. Bye bye.